मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट लेक्चर. फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या सिखाया? इन फर्स्ट लेक्चर वी हैव टॉट यू अबाउट ज्योमेट्रिक फिगर्स, राइट? यू हैव लर्न अबाउट, आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट सर्कल, स्क्वायर, triangle, rectangle. I explained you the difference between a square and a rectangle. What was the difference? Square has 4 sides. Rectangle also have 4 sides. But the difference between them is all the sides of squares are equal. But in a rectangle, opposite sides are equal. Sides are also called as edges. I explained you. You should remember that sides are also called as edges. That we explained you. And the corners are called as vertex, which I'm going to explain you again in this topic, because this again the topic part 1 was over. Now that same part 1 continuation of geometric figure is there, in which you are going to learn more other figures name of geometric figures, which I will show you right now on the board. So you have to just see what it is called as. Again I'm saying that the same questions will be not repeated in the exam. You have to understand the figure and the concept of it and then write the answer. Maths never the book questions or answers are going to come. So never complain कि मिस ये book में question नहीं था. Book question concept I'm going to explain. You have to understand it properly and take care that you try to understand. Just try to understand, then you will able to solve the sum or whichever question comes for the exam. Okay. So now just have a look. I'm going to start, but before that I'll just go through a small revision of last topic which we did of geometric figure. I explained you the figure of circle. Circle is round in shape, if you remember. Square has how many sides? Square has 4 sides, and all the sides of squares are equal. Then we explained about a rectangle. In a rectangle also there are 4 sides. In that also opposite sides are equal. Then we learn about a triangle. Triangle has 3 sides. It is not necessary all the sides should be equal. Sometimes a triangle can be of 90 degree, can be of acute angle less than 90 degree and more than 90 degree. It doesn't have a problem with that triangle. Triangle has 3 sides. That is what. And the measure of a triangle is always 180 degree. You should always remember the measure of a triangle is 180 degree. The measure of a square is 360 degree, because all sides are 90 degree. So it comes to 360 degree. Same, the measure of a rectangle is also 360 degree, because fourth side, all the side measures 90 degree. One more thing, in this square and triangle are also called as a quadrilateral. We also call them as a quadrilateral. Then we learn about what is right angle. Right angle. What is a right angle, children? Yes, and आप लोग का बहुत क्वेश्चंस आया बच्चों का कि मिस डेफिनेशन क्या लर्न करना है. इफ़ यू रिमेंबर ड्यूरिंग माय फर्स्ट लेक्चर, अगर आप फर्स्ट लेक्चर खोलेंगे तो फर्स्ट पेज में ही मैंने आपको डेफिनेशन लिख के मैंने पेपर में बताया था. व्हाट इज राइट एंगल? एन एंगल विच मेजर्स 90 degree is called a right angle. Then second was, what is an acute angle? An angle which measure less than 90 degree is called an acute angle. Third, an angle that was an obtuse angle. An angle which measures more than 90 degree is called an obtuse angle. So we learn about that. In that same thing we are going to learn again in this again same geometric part. It is a part 1, part 2 continuation of the chapter. So we will learn again in this part. So now just have a look what I'm going to teach you in this chapter, so that you can understand the concept. In that what we have learned now here in this chapter, we will learn some new words. That words I'm going to teach you now. See now. Morning student. As you have already learned about geometric figures, which are the figures what we have learned? I explained you right now just it. It was circle, triangle, square and rectangle. Also we learn about what we learn about? We learn about right angle, right? We learn about right angle. How to draw right angle? A straight line. It is a right angle. It is a straight line. Then what we learn about other? We learn about acute angle. Acute angle is always less than 90. Less than 90. This is called an acute angle. Then we learn about obtuse angle. Obtuse angle is
more than 90. This it is more than 90. You got it? Right angle is straight, acute angle is this, obtuse angle is more than 90. It is a V shape. It is less than 90. It is less than 90. Obtuse is more than 90, and this is 90 degree. This is 90 degree. Okay. So right angle is 90 degree. Acute angle is less than 90. Obtuse angle is more than 90. Okay. Now you are going to say, Miss, these things you already learned in the last topic. Now what you are going to explain new? Now we are going to start with a new. This is circle. आपको सर्कल का मतलब मालूम है? सर्कल क्या होता है? सर्कल माने राउंड फिगर, राइट? ये है आपका सर्कल. सर्कल का ये बीच का पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज द पॉइंट. बीच सर्कल का बीच का पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल. What we call them as a center of the circle. समझ में आया? Again this is a circle. This is the center, right? ये क्या है? बीच का पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? Center. When a line passes from the center of the circle and touches to an point of circle, it is called diameter. When a line passes from the center of the circle and touches to end point of circle, it is called a diameter. देखो ये सर्कल है आपका, देखा आपने सर्कल, ये सेंटर है. ये क्या है? सेंटर. मैंने क्या बोला? When a line passes from the center, ये लाइन पास हो रहा है, देखो यहाँ से ये सेंटर से पास हो रहा है एंड टचेस द टू एंड पॉइंट. यहाँ भी ज्वाइन हो रहा है, यहाँ भी ज्वाइन हो रहा है. और सर्कल इट इज कॉल्ड, यहाँ इट इज कॉल्ड एज अ डायमीटर. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायामीटर. दिस इज कॉल्ड अ न्यू वर्ड यू आर गोइंग टू लर्न. दिस इज अ डायामीटर. बेटा यहाँ से भी होगा तो ये भी डायामीटर हुआ, और अगर जो सेंटर से पास होगा वो डायामीटर होगा. देखो मैं आपको अलग से बना के दिखाती हूँ. ये सेंटर हो गया, सेंटर हो गया. यहाँ से मैंने पहले फर्स्ट मैंने ऐसे काटा था. ये क्या कर रहा है? इट डिवाइड्स द सर्कल इन टू इक्वल पार्ट्स. व्हाट इट डज? इट डिवाइड द सर्कल इन टू इक्वल पार्ट्स. ज़रूरी नहीं ऐसे ही डिवाइड करे ना. सीधा सर्कल पॉइंट अगर मैं ऐसा करूँगी, ये दो ऐसे पार्ट में डिवाइड हो रहा था, ये दो ऐसे पार्ट में डिवाइड हो रहा है. अगेन यहाँ पे सेंटर है, अगर मैं ऐसा ले लूँ, ये सेंटर से लाइन पास होना चाहिए. ये देखो यहाँ पे है. तो ये चारों फिगर क्या हो रहा है? ये सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स. इट डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स. इसका मेन काम यही है. जब सेंटर से पास होता है तो ये डिवाइड द सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स. सो इट इज कॉल्ड एज, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? डायामीटर. हम लोग क्या बोलते हैं इन सबको? डायामीटर. समझ में आया आपको? नाउ सी अगेन, वी आर ड्राइंग अ सर्कल. ये क्या है? पॉइंट. जब पॉइंट से लाइन को टच करता है, व्हेन फ्रॉम अ लाइन पासिस फ्रॉम अ पॉइंट एंड टचेस वन एंड पॉइंट ऑफ द सर्कल, इट इज कॉल्ड एज रेडियस और रेडी. हमको उसका सिंगुलर प्लूरल है बेटा. ये दिस इज अ सिंगुलर एंड प्लूरल. रेडियस एंड रेडी का डेफिनेशन कैसे होएगा आपको समझ में आएगा? इफ अ लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल touches one end point of circle, it is called as
रेडी और रेडियस। एग्जाम में हमको रेडी पूछ सकते हैं या रेडियस भी पूछ सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम रहता है। इट इज़ व्हाट इज़ दिस रेडी? देखो डायमीटर क्या था बेटा, डायमीटर सर्कल पूरा सेंटर से पास होता है, तो ये हम लोग इसको बोलते हैं डायमीटर, वी कॉल्ड दिस डायमीटर। ऑलवेज रिमेंबर रेडी और रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, इट इज़ हाफ ऑफ डायमीटर। देखो हमने पहले ये डायमीटर के लिए सर्कल ड्रॉ किया, पॉइंट, ये पूरा लाइन ड्रॉ कर देते, वी वर ड्रॉइंग फुल लाइन, बट इसका हाफ आधा ही ड्रॉ करेंगे हम लोग, खाली वो वन एंड पॉइंट को टच करेगा। सेकेंड पॉइंट सेंटर से स्टार्ट होगा और वन पॉइंट ऑफ द सर्कल को टच करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। अभी देखो इसका अलग तरह का डायग्राम दिखाती हूँ मैं आपको, और कितने टाइप के रेडियस कहाँ कहाँ हो सकते हैं। ये हो गया सेंटर, यहाँ ये ऐसे भी जा सकता है, ये सर्कल पॉइंट से शुरू हो रहा है, वो कहीं पे भी जा सकता है, वो ऐसे भी जा सकता है, पॉइंट से शुरू हो रहा है वो ऐसे भी जा सकता है, तो ऐसे भी जा सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है। खाली पॉइंट से शुरू होके वन पॉइंट को टच करेगा, इसको हम लोग बोल देंगे रेडियस। आ गया आपको समझ में? नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अ न्यू टॉपिक दैट इज कॉर्ड। हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं अभी? कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है बेटा? डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड। बिफोर आई स्टार्ट आई जस्ट से डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड। आपको कुछ समझ में आया डायमीटर को मैंने कॉर्ड क्यों बोला? डायमीटर को मैंने कॉर्ड क्यों बोला? बिकॉज इसका डेफिनेशन क्या है? अ लाइन विच touches 2 points of a circle is called chord. बेटा इसमें ना डायमीटर में क्या था? द लाइन शुड पास थ्रू द सेंटर। मैंने वापस बोल रही वर्ड, आई एम रिपीटिंग, जस्ट लिसन प्रॉपर्ली। डायमीटर में क्या होता था कि हम लोग जब ये डायमीटर बनाते थे, यहाँ पे अगर हम लोग बनाए डायमीटर, तो हम लोग का डायमीटर का एक बहुत ज़रूरी प्रॉब्लम था कि डायमीटर को मैंने क्या लिखा? अ लाइन विच टचेस 2 पॉइंट ऑफ अ सर्कल। यहाँ से ये जो लाइन बना रहे थे, ये 1 पॉइंट और ये 2 पॉइंट ऑफ अ सर्कल को टच कर रहा है, मगर ये डायमीटर का डेफिनेशन में था कि इट शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल माने सेंटर से जाएगा तो डायमीटर। कॉर्ड में कैसा है? देखो ये लाइन है, सर्कल है, यहाँ से यहाँ ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट, 2 पॉइंट को टच कर रहा है, 2 पॉइंट को टच कर रहा है, तो ये हो गया आपका कॉर्ड। देखो कहीं पे भी हो सकता है वो, इट कैन बी एनी, सेंटर से पास होना ज़रूरी नहीं है। देखो यहाँ पे भी ये 2 लाइन को पॉइंट को टच कर रहा है, the other circle this side। देखो मैंने सब सर्कल बनाया है और सब जगह मैंने सर्कल को टच किया, मगर मैंने सेंटर से नहीं लिया, लाइन को मैंने सेंटर से नहीं लिया। अगर मैं सेंटर से लेती हूँ तो वो मेरा डायमीटर भी होता है, तो डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड। डायमीटर भी कॉर्ड क्यों है? बिकॉज इट टचेज अगेन द 2 पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड डायमीटर is considered as longest chord। longest chord कैसा बना? देखो बेटा एक केक का टुकड़ा है, एक केक का टुकड़ा है, मैंने यहाँ से काटा, सर्कल के 2 पॉइंट को टच किया, तो मेरा एक छोटा सा हिस्सा निकला। देखो एक छोटा सा हिस्सा निकला, दिस इज माई कॉर्ड बिकॉज इज टचिंग द 2 पॉइंट ऑफ द सर्कल। कितना हिस्सा निकला? यहाँ पे। इफ़ यू सी अदर सर्कल, और मैंने इसको यहाँ से काटा, तो मेरा पीस देखो कैसे निकला, एक केक का पीस हम लोग को काट रहे तो ये इतना निकला। बट व्हेन आई ज्वाइन द लाइन, 2 लाइन मैंने ज्वाइन किया, देखो यहाँ से और यहाँ से टच कर रहा है, ये डायमीटर भी हो गया और कॉर्ड भी हो गया, क्योंकि इसने क्या किया? सर्कल के 2 पॉइंट को टच किया। अगर ये केक का टुकड़ा होता तो कितना बड़ा हो जाता? देखो क्योंकि 2 टुकड़ा होता है, एक इधर टुकड़ा और एक इधर टुकड़ा केक का, तो इट इज़ अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड एंड इज कंडीस बड़ा है हिस्सा। देखो केक का कितना छोटा छोटा मिल रहा था आपको, मगर अगर मैं सेंटर से काटती हूँ, बीच में से टुकड़ा करती हूँ, तो हमको 2 हिस्सा मिलता है एंड विच आर इक्वल इन साइज एंड इट इज़ बिग इन साइज। इट इज़ कॉल्ड एज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड। मैथ्स में हम लोग उसको बोलते हैं इट इज़ अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोनाउंस कॉर्ड। दीज आर ऑल कॉर्ड्स, बट
डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड। अब जब इसमें कॉर्ड बनाएंगे, डायमीटर को देखेंगे, डायमीटर भी कॉर्ड रहता है, ये डायमीटर भी है, कॉर्ड भी है। अगर एग्जाम में मैंने ये फिगर दिया और पूछा आपको कि कॉर्ड का नाम लिखिए, ए बी, आपको कॉर्ड का नाम लिखिए, तो आप बोलेंगे मिस ये तो सेंटर से पास हो रहा है तो डायमीटर है। बेटा डायमीटर है बट ये कॉर्ड भी है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, तो सेगमेंट ए बी। बेटा वाई वी यूज द वर्ड सेगमेंट, बिकॉज बोथ द लाइन्स वी हैव अ डॉट। हम लोग यहाँ पे लाइन एरो नहीं बना रहे हैं, लाइन नहीं बना रहे, वी आर ज्वाइनिंग बोथ द साइड हैव अ डॉट, सो वी कॉल देम एज अ सेगमेंट। सेगमेंट ए बी इज द कॉर्ड। फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि ए बी इज द डैश कॉर्ड, ए बी इज द लार्जेस्ट कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, यू कैन यूज द वर्ड लाइक दैट वे। समझ में आया? नाउ वी विल, आपको समझ में आया ना मैंने क्या क्या बताया? वंस आई जस्ट गो थ्रू, ये 4 चीज़ आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले आपको बताया, क्या बताया वो देखिए आप। पहले मैंने आपको क्या बताया? मैंने ज्योमेट्री फिगर्स जो पहले एक्सप्लेन किए थे वो बताया। देन आई हैव एक्सप्लेन यू रिगार्डिंग द सर्कल, द सेंटर ऑफ द सर्कल। देन आई हैव एक्सप्लेन यू रिगार्डिंग द डायमीटर। डायमीटर का क्या रहता है? व्हेन अ लाइन पासिस from the center of the circle and touches to end point of the circle, it is called a diameter. मैंने आपको वो बताया। Then I explained you about the radius. If a line passes from the center of the circle and touches one end point of the circle, it is called as a radius. Then I explained you regarding a chord. Diameter is also called a chord. A line which touches 2 points, जो के 2 point को टच करता है उसको हम लोग chord बोलते हैं। बेटा अभी combined book निकालेंगे। We are going to start with the combined book. Geometric figures, formatic assessment, part 1, activity. This is the activity जो हमने पहले किया था। Draw the following. Right angle. बेटा मैं पेन से ड्रॉ कर रही हूँ बट यू आर सपोज टू ड्रॉ विद पेंसिल। ऑलवेज द डायग्राम शुड बी पेंसिल। मैं पेंसिल से ड्रॉ करूँगी तो आपको दिखाई नहीं देगा, सो आई एम ड्रॉइंग विद पेन बट यू आर सपोज टू ड्रॉ विद द पेंसिल एंड यूज अ रूलर। पहले ऐसा लाइन ड्रॉ करो, स्ट्रेट स्ट्रेट, ये आ जाएगा। आपको लाइन बोला तो एरो आना चाहिए। दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल नहीं बोलना क्योंकि इसको मैंने ज्वाइन नहीं किया, अगर ज्वाइन किया तो वो ट्राइंगल बन जाएगा। इट इज राइट एंगल। acute angle is less than 90, acute angle is less than 90 आ गया। obtuse angle is more than 90, obtuse angle is more than 90। समझ में आया? now circle, question number 2, look at each circle. Is the line shown by the arrow a chord, a diameter or a radius of the circle? Write in the box. इन्होंने 4 फिगर दिया है, इन्होंने इसको क्या बोलते हैं वो पूछा है। मैंने आपको बताया था ये सर्कल है, इसका ये बीच का पॉइंट है, इसको बीच के पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? सेंटर ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? सेंटर ऑफ सर्कल। व्हाट वी कॉल दिस वी कॉल एज अ, सर्कल के 2 पॉइंट को टच कर रहा है मगर वो सेंटर से पास नहीं हो रहा है तो उसको बोला जाता है chord। व्हाट वी कॉल दिस फिगर एज, ये अ लाइन विच पासिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड टचेस द 2 पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज अ डायमीटर। जो मैंने डेफिनेशन बताया वो आपको याद रखना है, वो याद रखोगे तो इजीली आप समझ सकते हो। दिस इज अगेन अ सर्कल, ये सेंटर से लाइन को टच करा, ओनली 1 पॉइंट ऑफ द सर्कल, दैट इज कॉल्ड एज रेडियस। आया बेटा? ये फिगर को ऑलरेडी सॉल्व किया क्योंकि जो लास्ट ईयर बुक, मेरे पास बुक नहीं है अवेलेबल है स्कूल में, तो इसके लिए आंसर्स लिखे हुए हैं। मैंने आपको जो आगे का आंसर्स नहीं है जो लिखे हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, इसके लिए मैंने आपको पेज में किया। आंसर इन शॉर्ट, नेम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सर्कल है आपका, इसका सेंटर कौन सा है? C, yes, point C is the, मुझको शॉर्ट में नहीं चाहिए, इन्होंने शॉर्ट लिखा है मगर आपको मालूम होना चाहिए, द सेंटर ऑफ सर्कल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, नेम द रेडी ऑफ द सर्कल। मैंने आपको पहले ही बताया था ये रेडियस का ही अदर वर्क है, रेडी जो हम लोग प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल में बोलते हैं। तो ये पॉइंट लेने का, इस सर्कल का पॉइंट लिया, CD, CX, CY, these are the all radius of the circle. Now name the chord of the circle. chord का definition क्या था? It should touch 2 lines, 2 points of the circle.
देखो ये वाला लाइन एक ही पॉइंट टच कर रहा है सर्कल को, सेकेंड पॉइंट नहीं कर रहा है। हाँ, बी ए कर रहा है और ए बी, यू कैन राइट बी ए, आप बी ए बी लिख सकते हैं या ए बी भी लिख सकते हैं, इट डजंट मैटर, मेरे को वो चलेगा। तो आई हैव रिटन ओवर हियर ए बी। देन एम एन, अगेन इट टचेज द 2 पॉइंट, दैट इज एम एन. This is also a chord. XY is also a chord. It is a diameter as well as a chord. It is the longest chord. तो chord में इसका नाम भी लिखना ज़रूरी है। तो कितना लाइन्स आपका सर्कल को टच कर रहा है पॉइंट को? बी ए एक्स वाई एम एन, ये 3 पॉइंट आपको टच कर रहा है। तो दिस आर द chords of the circle. Now turn your page. Now क्वेश्चन नंबर 4 इज लुक एट द फिगर. लुक एट द फिगर, इन्होंने वापस एक डायग्राम दिया है। एग्जाम में आपको यही डायग्राम आना ज़रूरी नहीं है, आपको समझ के आना चाहिए, डायग्राम दूसरा भी आ सकता है। ठीक है, अभी क्या है, नेम द सेंटर ऑफ द सर्कल. वापस इस सर्कल का सेंटर क्या है, देखो ब्लैक पॉइंट में दिया है हमने सेंटर. सेंटर क्या है, पॉइंट ए. क्या है, पॉइंट ए इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. नेम द डायमीटर. डायमीटर क्या था, लाइन विच पासिस फ्रॉम द सेंटर. सेंटर से जो लाइन पास होएगा और सर्कल के 2 पॉइंट को टच करेगा उसको बोला जाता है डायमीटर. वो हो गया सी डी एक्स वाई. क्या होता है, सी डी एक्स वाई, सी डी एक्स वाई. समझ में आया. वॉट आर द सेगमेंट ए एक्स एंड ए वाई कॉल्ड. क्या बोलते हैं इसको, देखो ए एक्स किधर है, ए इधर है, ये सेंटर आपका सर्कल है, सर्कल का पॉइंट है यहाँ पे, वो है आपका ए. कि ए एक्स और ए वाई, एक्स और वाई, ए एक्स आधा दिया है, पूरा दिया होता ना एक्स वाई को हम लोग डायमीटर बोलते हैं. इन्होंने खाली हाफ पूछा है, सेगमेंट पूछा है, ए एक्स ए वाई, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस, और इन अदर वर्ड वी कॉल एज रेडी. समझ में आया आपको, हम लोग रेडियस बोलेंगे या तो रेडी बोलेंगे. ओके, नाउ now this remaining part we will continue in the next lecture, because I think this again we have to explain it's a big topic. We'll explain it, then I will start with the topic in a combined book. First I'll explain you on the board. This we already explained you, it was regarding a radius chord which I explained in a figure. So now you practice this one and you complete this much. Next lecture I will going to explain you about the vertex and size. These are also a part of geometric side. Okay, chalo, stay home, stay safe.